Give 2 minutes for people. So I believe we are now live. I'm going to give 2 minutes for people to be able to come in. And then we will get started. Sure. All right, 30 more seconds, and then we will get started. Facebook. All right, let's get started, Nabil. So Assalamu alaikum everyone, and welcome to our live session with the one and only Nabil Kadir. Today we're going to talk about a topic very close to our heart, which is life coaching. As some of you may know, life coaching has personally transformed my own life. Lekin it's very hard to explain the value of life coaching to people, particularly in Pakistan and particularly Pakistani guys. हम लोगों का तो ऐसी सूरत हाल होती है कि अगर हम रोड पे भी कहीं घूम जाएं तो हम दूसरों से डायरेक्शन या रास्ता पूछने से घबराते हैं कि यार कहाँ जाना है. And then when it comes to getting direction or coaching where we want to go into our life, it's even more challenging to be able to talk and to be able to drive that conversation forward. लेकिन जो इस हमारी जो आप उसको शर्म कहें या इसको हेजिटेंसी कहें या हमारी इनकैपेसिटी कहें, इसकी वजह से एक बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव, रियलाइज और इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए टुडे आई हैव इनवाइटेड नबील, हु इज अ मैन हु नीड्स वेरी लिटिल इंट्रोडक्शन, बट ही इज एसेंशियली अ serial everything. He's a serial entrepreneur. He is a media personality, and so you know him most famously from Idea Karodon Ka. And his he's a teacher, he is a life coach, but overall, if I'm to summarize him in one sentence, he's a man on a mission to build and create the best version of himself. And I think that is something that inspires me a lot about learning from him. And now he's gotten into life coaching as well. So I thought we would catch up with Nabil and we would try to understand what is life coaching, how it works, what's the value of life coaching, and sort of get a little bit personal with him to be able to understand all of this. So sabse pehle to Nabil, thank you for coming. And tell us, like, very directly, is life coaching basically for people who are lost, for people who are losers, for people who don't understand what they want to do with their life, or is life coaching for winners and for people who actually want to accomplish something with their life?
Thank you, Bilal. Thank you very much for inviting me. Assalamu alaikum to you and assalamu alaikum to everybody watching. It's actually very interesting जो आपने कहा ना, आपने बड़ा उसको एक और एक्सेप्शन पे उठाया क्वेश्चन अपना कि क्या ये उन लोगों के लिए है जो नाकाम है. It's actually the complete opposite. It is a process through which you can move from good to great and then even greater. It's a continuous process. So it's kind of a coaching to है ना, वो it's a methodology that supports change over time. So it's you have to like जिंदगी में अल्फाज की बड़ी वेटेज होती है, लेकिन हम अपनी स्मॉल टॉक में अपनी बातचीत में बहुत से अल्फाज कह देते हैं जिसका मतलब शायद वो नहीं होता. लेकिन जब आपको कोचिंग खास तौर पे में जब आई एम डीलिंग विद माय क्लाइंट्स या माय फ्रेंड्स माय पार्टनर्स, हम बड़े केयरफुल होते हैं अपने अल्फाज में, बिकॉज मैंने कहा कि सपोर्ट्स चेंज ओवर टाइम. It has a lot in it that you must understand. So coaching is a service that builds up on the intention of wanting to get better and improve. So if you understand, I'm focusing on the word intention here. You're building up on the intention to improve. So how it is very different from, say, and I know this is going to be a next question in your kitty, because how is it different from coaching and therapy? वो बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप कोच के साथ जब एक क्लाइंट बात करता है तो we just talk on actionable items. We talk about actionable items. We don't say are you feeling better? Feeling better पे बात खत्म नहीं हो सकती. It's if someone wonders कि will coaching make me feel better after 1 hour or 2 hours, it's actually the opposite. Because coaching may actually make you think a lot more about who you are. And that's the purpose of asking challenging, direct, strong questions. And when you're a coach, because आप देखिएगा इसी में आपका opinion देता हूँ उस पे कि coaching में the most important thing that we must understand is that कि हम हवाई बातें नहीं करते. हमारे लिए we have models that help create a sustainable skills for you to become a high performance individual. Now that individual could be anyone, and as you ask more questions, I'll try and put more light on that too. So I think जो आप बात कर रहे हैं, and now I can understand why life coaching is so difficult to talk about and engage with in Pakistan. हमें मुश्किल सवालात अपने आप से करना पसंद नहीं है, because most of us are afraid of the answers that we will find. मुझे याद है अभी भी मेरी कुछ लोगों को मैं मेंटोर करता हूँ, उनसे मैं इनफॉर्मली जब कॉन्वर्सेशंस करता हूँ तो when I ask them, I'm like, what do you really want in life? So they tell me what their parents want, they tell me what society wants from them, and it's not like they don't know, but they're afraid to say it because the minute they say it, they will have to do something about it. Do you feel like the fear is real कि आप अपनी असलियत से लोग डरते हैं, इस वजह से लोग लाइफ कोचिंग से डरते हैं? मैं अगर बिलाल आप इजाजत दें तो मैं इसका सवाल कोचिंग से हट के दे दूं थोड़ा सा. जी जरूर. कोचिंग से मैं हट के ये देना चाहूंगा कि आप इसको इस तरह देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. हम यहाँ पे एक इंसान की बात कर रहे हैं. मैं, आप, कोई और, जिसको हम क्लाइंट बोल देते हैं, कितना एक रोबोटिक्स लफ्ज़ है. वो एक इंसान है. एक इंसान एक इन हिमसेल्फ एक पूरी मशीनरी है, और एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इंसान है. सो ये एक्सपेक्ट करना कि मैं, आप, अगर हम किसी को मेंटोर कर रहे हैं या कोच कर रहे हैं, हम उसको समझ लेंगे 2 घंटों में, तो ये खैर बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि ये अनरीजनेबल बात है. अगर हम अपने सब्जेक्ट को ना भूलें कि हम इंसान की बात कर रहे हैं. एक इंसान बनता कैसे, डेवलप कैसे होता है. हम 0 से 1 पे जो मैं बोलता हूँ बीओ, हम कैसे जाते हैं? क्योंकि आप जब पैदा होते हैं, आपके गिर्द एक मुआशरा होता है, उसमें आपके सर्कल्स होते हैं, आपका कुछ इन्फ्लुएंस आपका घर से आता है. इन्फ्लुएंस का मतलब याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस कम्स पैकेज्ड इन एक्सपेक्टेशंस. सो कुछ एक्सपेक्टेशंस घर से आती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके स्कूल के दोस्तों से आती हैं, फिर आपके कॉलेज के दोस्तों से आती हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से आती हैं, फिर आप नौकरी पे लग जाते हैं, फिर आपके काम के दोस्तों से आती हैं. एक वक्त आता है कि जो इंसान जहां से पैदा हुआ था, जो उसकी
छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, ख्वाब थे, जब वो जुबली की चॉकलेट खोल के खाना एंजॉय करता था, या वॉल्स की आइसक्रीम जब हमारे जमाने में आई थी तो बहुत मजा आता था वो 30 रुपए की आइसक्रीम खा के। वो जॉयस थी, वो जॉयस कहीं गुम जाती है। हम बन जाते हैं एक मुजस्समा, एक वी बिकम काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट। हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है बहुत सारे और लोग, बहुत सारी और एस्पिरेशंस, बहुत सारी और एक्सपेक्टेशंस, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे और परसेप्शंस और नैरेटिव्स। अब अगर आपको परसेप्शन मिल गई कामयाबी की अपने किसी जानने वाले से, आप तो लग पड़ेंगे उस तरफ। तो अब उस तरफ लग पड़ते हैं, एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो कामयाबी मिल जाती है, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं तो कहते हैं यार मजा ही नहीं आया, मैं तो अभी भी लॉस्ट हूँ, मैं तो अभी भी अपनी बेस्ट सेल्फ पे नहीं आया। बिकॉज आपने जो अपने लिए गोल्स बनाए, शायद वो लोगों को देख के बनाए, एवरीवन की अटेंशन और एक्नॉलेजमेंट को सीख करने के लिए बना लिए। जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू करता है, which is the process is called self reflection. सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने आप से बात शुरू करते हैं, अपनी असेसमेंट शुरू कर देते हैं, और अपने आप की ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद what you see is amazing things start happening around you. Why? Because जो everyone है ना, वो फेड अवे होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके सवाल से कि मैं इस बात को लिंक करूं, वो सबसे बड़ा खौफ है हमारा। यार अगर लोगों ने हमें छोड़ दिया, अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे हम ना उतरे पूरा, तो क्या बनेगा? जबकि आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो कहती है, मैं ऊपर पढ़ा देख रहा हूँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाकिस्तानीज, extraordinary. What makes you extraordinary? It is the quality of your choices and your decisions that make you extraordinary. तो अगर वो डिसीजंस और चॉइसेस ही किसी और के इन्फ्लुएंस से लेंगे आप, तो आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनेंगे। यू विल बी अ मी टू ऑफ समवन एल्स। What coaching can do really is to show you the mirror. It can show you the mirror and say, dude, there is so much you can do. Just a few more steps forward. And then you write those things down. And when we come in the coaching process, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो फियर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि वो फियर होता है कि यार मैं अपने आप से कैसे सच बोलूं, मैं ये इतने मुश्किल सवाल कैसे कर लूं। याद रखिएगा, आपसे सिंसियर सबसे ज्यादा आपका अपना आप है और कोई नहीं है। तो अगर आप अपने आप से वो सवाल नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो इस माइंडसेट से अगर आप कोचिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो फर्क पड़ सकता है। You know, this is so fascinating because it essentially means that the majority of us are living lives that we don't want to live. And we would rather live lives that are not our own or that we're not happy with than to question where our influences have come from and who do we really want to be. और हम लोग अपनी attention, अपनी resources, अपने पैसे दूसरी चीजों के ऊपर और दूसरे लोगों को खुश करने के लिए खर्चते हैं, बट अपने ऊपर एंड इन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी हार्डली टेक एनी टाइम टू बी एबल टू डू दिस। तो अब जरा मुझे समझाएं कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। सपोज आई एम अ पर्सन हु वांट्स लाइफ कोचिंग एंड आई कम टू यू एंड से कि यू नो I feel like there is something missing in my life. What will you do? How will we enter the process or the journey of life coaching? अच्छा, तो पहले तो जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप खुद आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई कोच, कोई हम जैसा बंदा आपको आमादा कर ले, आओ मुझसे कोचिंग ले लो, तुम्हें मैं कामयाब कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। So it begins with yourself. So that feeling that maybe I need that mirror, maybe I need that partnership. Keyword is partnership. I need someone able to partner with me as I move ahead with my goals. So that is the intention with which you come. So the first thing I would do if I were talking to you, I would ask you to make a list of things which you consider are your quote unquote improvement areas. Which you feel कि यार ये नहीं है, वो नहीं है. I'd ask you to crib.
I'll ask you to whine all you want. Take it all out on a piece of paper. And we start from there. So looking at that, I would then ask us to come in the first session, which I don't charge for. A lot of coaches do charge for it as well, but I don't. That's called the discovery session. तो डिस्कवरी सेशन में होता ये है कि आप गप लगाते हैं, आप बड़ी सीरियस गप लगाते हैं, उसके अंदर आप बातें करते हैं और मैं आपको सुनता हूँ और मैं सिर्फ आपको बीच में कुछ प्रॉम्प्ट्स देता हूँ. So मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं डिस्कवरी के अंदर. I have to actively listen to you and I have to ask you really direct questions. These are the two things I'll be doing. And then you will be running me through your life, and then what we will create at the end of the session, आपका सवाल ये होना चाहिए, would be a process कि अच्छा मेरे आपसे बात करने के बाद कि आप अगर आप मुझसे बात कर रहे हो एज अ क्लाइंट, आपके गोल्स क्या है, व्हाट आर योर गोल्स. कई लोगों के गोल्स बहुत फिगर्ड आउट होते हैं. आई हैव डेल्ट विद पीपल जो कहते हैं मेरा ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, हमें उसको भी तोड़ना पड़ता है. कई लोग कहते हैं यार गोल मिल ही नहीं रहा, लगे हुए स्टार्ट कैसे होते हैं. कोई लोग होते हैं कहते हैं अच्छा मुझे पता नहीं कि मेरा ये गोल है कि नहीं, हेल्प मी, डिस्कस दिस विद मी, टॉक टू मी. I tell them immediately, I am no one to tell you what your goal is. No one. So my job is to agree with you and only question you where I feel the math ain't making sense. It isn't making sense. So that's where I question you. Otherwise, I would listen to you. So it starts the discovery session जिसके अंदर हम आपका पूरा एक कह लो skeleton बनाते हैं. वो skeleton का जो end होता है वो ये होता है कि we agree on certain goals. Certain goals. Now it can't be कि I want to reach the moon and come back in 3 days. It could be as unreachable as that, but we try and make smart goals. आप दोनों हम दोनों corporate sector से हैं, हमें पता है हम बड़ी smarter goals की बात करते हैं. So we actually make smart goals for your life. So हम पहले वो goals create करते हैं. फिर हम उन goals से अगला कदम जो लेते हैं वो हम लेते हैं आपकी रियलिटी पे देखते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है इस वक्त. Again, with a lot of questions, there are certain models, there are certain tests. I give you those tests, you do those tests. I make you work hard. So I mean, but it's for you. It's you're investing in your own self. ये आप कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे. So you do a lot of work and you try and find your reality. So we agree on our reality. सबसे बड़ी check मिलती है हमें. And it's fascinating. I mean, responses देखे हुए clients के. They're like, oh, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सारे मेरे पास मामला हैं. Can you give me an example of something like that? And the reason why I'm asking is बहुत सारे लोग का ये भी opinion होता है कि यार people who get therapy or life coaching are people who don't have friends, people who don't have anybody to talk to. तो इसलिए वो किसी professional को basically पैसे देते हैं to be able to listen to them. But it's actually a lot of hard work, revealing yourself. So give me an example where somebody was, on the journey with you and discovered something about themselves that they didn't know. So yeah, so we discovered, I can't expose names because it's part of the confidentiality agreement between the client and the coach. कि हम नाम तो नहीं बात कर सकते. So because I have a list of lots of interesting people, this is one that I want to talk to you about. मैंने एक exercise करवाई, एक founder है, he's doing very well. He's doing very well, mashallah, and he will do very, very well. So I'm saying he will do well because now I know him, so I have a lot of faith in him. I think he'll do very well. And if you see the smile and the happiness in me when I say it, because I'm a partner to him. I want him to do well. I am his coach. So, and I'm mashallah seeing him do progress much better. So, उसका एक बड़ा interesting twist आया. कोई तीसरा session था हमारा. उसमें he was just stunned and quiet, just looking at me throughout. And I asked him at the end of the session, क्या हो गया? सकते हुए कुछ चलेगा. So we did this activity क्योंकि जब वो आए थे उन्होंने कहा था अपनी डिस्कवरी सेशन में मुझे कि देखें अच्छे फाउंडर्स ऐसे होते हैं. उन्होंने इलॉन मस्क की तारीफ की, उन्होंने इलॉन मस्क की और बिल गेट्स की तारीफ की और उन्होंने इस तरह के बड़े-बड़े लोगों की तारीफ की और उन्होंने कहा ऐसे लोग होते हैं. पाकिस्तान में देखिए आप एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. ये अच्छा ठीक है, हो गया. हमने तीसरे फेज में जाके हमने एक एक्सरसाइज की कि आए एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं दुनिया के जो जबरदस्त फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं. हमने वो ट्रेड्स में शुरू किया. उसमें उन्होंने खुल के बताया परसिस्टेंट होते हैं, ये होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. मैं लिखता गया. मैंने कहा नहीं ये बोलेंगे नहीं आप, हम लिखेंगे दोनों.
एक आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, हम इसको पर्चे पे दिखाएंगे दूसरे को लिख के। हम दोनों ने लिखा, आधा पौना घंटा हम लिखते रहे, इतने सारे ट्रेड्स थे। हमने ब्रेक ली बीच में, पानी शानी पी के। हमने कहा अब एक काम करते हैं, अब जरा सच बोलते हैं, आपके ट्रेड्स कौन कौन से। जब उन्होंने लिखना शुरू किया, मेरा यकीन करें बिलाल, 75% अप टू 80% उनके ट्रेड्स उनके पास वो सारे थे जो उन्होंने किताबों में और इंटरनेट पे लोगों के पढ़े हुए थे। And he is just looking at himself and he's shocked. He's like, why did I not know this? I said, well, because you were not shown the mirror. And ever since then, you know, I see the change in the way he sits. I see the change in with which he speaks. Yep. हाथ खुल गया. He's flying. Pehle he was all constricted. So that confidence that he wanted, he got it by himself, for himself. I was just there asking questions. So while I totally kind of, cut off my role and reduced it to nothing, इसमें एक बड़ा important role होता है सुनने का. जब आप सुनते हो ना, तो आपको पता होता है, because we are taught. I mean, एक certified coach होना और एक शौकियतन कोच बनने में थोड़ा सा फर्क ये आता है कि we have to go through that grill of learning models and tests and lots of things. तो मेरे पास इतना मवाद है, but I can't throw all that to you. I have to. There's no one size fits all. So I need to listen to you and know, अच्छा इसके ऊपर ये वाला मॉडल चलेगा. आप ऐसा करो, आप ये एक्टिविटी करो मेरे साथ, आप ये एक्सरसाइज करो, take this test. Spend 20 minutes, take this test. अच्छा यार, I need more time. Okay, sleep over it. करो आराम से टेस्ट को, क्योंकि बड़ा I need you to do this test really well. तो उसके लिए वक्त लगाते हैं लोग, क्योंकि मुझे पता है कि वो टूल्स क्या हैं, they work because लाइफ कोचिंग की हिस्ट्री है पूरी, एक इस इंडस्ट्री. मैं आपको याद करें बता रहा था एक वक्त में कि करीबन $15 बिलियन की तो इंडस्ट्री अमेरिका में सिर्फ है. तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में भी ये नहीं स्टैब्लिश हुई. जितनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो इंडस्ट्री बन जाती है. तो उसी की ख्वाहिश में हूं मैं कि वो बने. तो आप समझिए कि ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कैसे वो टर्न आया है. It was a very logical way. There was no me fudging things on him. He was speaking himself. And I now see him, Bilal, applying those 75% of qualities. Wow. Imagine, I was not seeing him do that 2 weeks from that time. और ये सब कुछ कोविड के अंदर हुआ है. And I see him taking hard decisions. उसका बिजनेस है, उसको आफ्टर इन ई-कॉमर्स पे काम करते हैं, तो they have some serious decision making to do right now. वो कर रहे हैं. And he's become brave all of a sudden, because in one of the sessions he agreed, I am a brave man. And we proved it to ourselves. Yep. I said, let's prove it to each other that you're brave or not. And then we went into so many parts. So it was very interesting. It was very stories. That's a fascinating journey. और इसमें अगर मैं दो चीजें निकालूं, like what I learned from this story is कि एक is the power of the question, कि आप उनसे you ask the right questions, and then second is the power of listening, which is the job of the coach. But मुझे from a question point of view बताएं कि you know, what are questions people should be asking themselves to think deeply about their life, that might even inspire them to think about coaching or think about their own future? What are like maybe 1 or 2 questions that you think everyone should ask of themselves? Well, there's so many questions you can ask. To yourself. If I would like literally start on top of my head, because हमने इसकी तैयारी पहले तो नहीं की थी, so let me think about it. Okay, so what you should first thing you should ask yourself is how. Let's say you're in a situation. You're in a situation. You're in a किसी भी दिन में, if it's Tuesday, you're in a situation, and first thing I'd ask you to do is, how do you see yourself in that situation? Yourself. Forget about the situation. Take the noise away. What exactly is happening? हो क्या रहा है? Clarify करो अपने लिए, हो क्या रहा है? What is working well and what isn't working well? क्या ठीक जा रहा है? क्या ठीक नहीं जा रहा? आपको मेरी बात समझ आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? इसके बाद अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, what choices, for example, what decisions, what choices led me to this place?
मैं जहां पे हूँ वो choices क्या थी? Let me write those down. Because a lot of times we take these decisions and we don't even think about them. So, जो हो रहा है उसके पीछे एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरे अलावा, इन जो इम्पैक्ट कर रहे हैं मुझे एलिमेंट्स, उनमें कौन से एलिमेंट्स मैटर करते हैं, कौन से नहीं मैटर करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना. I could think about a lot more questions. हाँ, एक सवाल और जो मैं बताऊं आपको, जो आमतौर पे कोई भी पूछ सकता है अपने आप से, कि इस सिचुएशन में मैंने अपने आप को देखा, अब आप जाओ सिचुएशन से बाहर निकलो और कहो कि और मुझे कैसे देख रहे हैं सिचुएशन. How are people seeing me right now in this particular state of mind or a state of affairs? मैं जिसमें हूँ, जो लोग कैसे देख रहे हैं? And then some questions from their end, out to in to out. And that's how you can ask so many reflective questions to yourself and make a very quantitative picture of a situation that looks very qualitative. लगता है इसको तो हम numerically कर ही नहीं सकते. Everything, Bilal, is numbers. I'm sure you agree. Everything is numbers. It says so in the Quran, and it's the same thing everywhere. Trust me, it's all numbers. So हमारी decisions, choices भी numbers हैं. So a lot of clients I deal with who want to talk very philosophically, तो हम उस तरफ भी चले जाते होते हैं कभी-कभी. लेकिन goal is हर session के end पे we agree on a goal to start with and we end on that goal. It's very important. वरना tracking नहीं होती, वरना सिर्फ बातें होती जाती हैं और thoughts खुलती जाती हैं. You have to close thoughts. That's the core, and that's the real challenge for a coach. That's really interesting. So, as you know, I also get life coaching, but we are not so good, or maybe my coach is not so good as you are, because हम लोग इस तरह नहीं करते कि before each session or during each session we set a goal कि by the end of this session we will sort of close this conversation. For us, it's more open-ended and it keeps going around in circles. As you can see, I love talking, तो मैं वो बातें घुमाते रहता हूँ, but as I'm speaking, I learn a lot more about myself. जो आपने realization की बात करी, लेकिन अब I want to talk about something जो आपने बहुत interesting शुरू में बात करी थी कि the difference between therapy and life coaching. और मैं इसमें अपना experience भी एक share करना चाहता हूँ, क्योंकि my journey to life coaching actually came from therapy, even though I agree with you that it's different, but मैं थोड़ा सा अपना share करना चाहता हूँ and then I want to get your thoughts on it. So around 4 years ago, I went through like a very bad episode of clinical depression, and sort of it had me completely down, and that's a topic for another day, कि आप depression को किस तरह treat करते हैं and how it's real and how you need to shatter stigmas around depression. लेकिन then I got therapy for my depression, और वो कुछ 2 साल तक चलती रही, and then the therapist is like, okay, you're fine, you don't need to come see me anymore. But I'm like, you know what? I enjoy, talking to someone. It's not like I don't have friends, but I enjoy being able to talk to someone and be able to hear my thoughts out loudly. कभी कभार आप गाड़ी में गाने सुन रहे होते हैं, तो आप गानों का आवाज इतना बढ़ा देते हैं कि you cannot hear your own thoughts, because you want to drown out the ability of you thinking of your own thoughts. So anyways, I was like कि मुझे ये continue करनी है. So, she's like, okay, therapy might not be right for you, but life coaching might be right, because, you want to get better. और उसने जो मुझे example दी, उसने मुझे Serena Williams की example दी, and she's like, why does Serena Williams have a coach? मतलब Serena Williams is the best tennis player that is alive in the world today. Why would she need a coach? She doesn't need somebody to teach her better tennis, but she needs somebody to help with her mental game. तो फिर मैंने बेसिकली लाइफ कोच के साथ अपना सिलसिला शुरू किया, एंड I found it really transformative, क्योंकि जो मेरी mental game थी, I found that getting stronger and stronger, and I also understood the difference between therapy and life coaching. So therapy, is a lot more holistic and 360, and you don't actually know what the issues are, and you uncover them and then you begin to solve them. But life coaching specifically is when you're setting goals for yourself, and either you don't know what the right goals are, or B, you don't know the pathway to be able to achieve it, or achieve it faster. In my head, this is roughly the difference between life coaching and therapy. But
I'm speaking of this as a client or as an or somebody who's experienced it on the other side, as somebody who sits on the other side of the sofa. What do you think is the difference between life coaching and therapy? बिलाल आपने अच्छा ही समझा दिया इसको, लेकिन इसको सेरेना विलियम्स का एग्जांपल लेते हैं। चलें, मुझे तो क्योंकि आई एम अ मेजर फैन ऑफ रॉजर फेडरर, तो मैं उनका एग्जांपल ले लेता हूँ आपके उसके लिए। रॉजर फेडरर को एक जमाने में बैक की इंजरी हुई थी, उसके बाद उसको, इन सबको होती है, दे नेवर प्लेड 100%। सो और इस तरह के केसेस में उसको कोई डिफरेंट इंजरीज हुई है, एंकल की इंजरी हुई है। जब उनको इंजरी हुई तो आपको पता होगा पिछले फेज में रॉजर फेडरर ने अपने साथ स्टेफन एडबर्ग को कोच बनाया हुआ था। स्टेफन एडबर्ग मेरे बचपन के फेवरेट कोचेस में से थे, क्योंकि प्लेयर्स में से थे। जब मैं 90s में टेनिस देखता था तो मैं ऐसे दुआ करता था उनके लिए कि वो जीत जाएं, जैसे कि पता नहीं मुझे पैसे मिल रहे हैं उनके। लेकिन वो मुझे इतनी उनके साथ ऑब्सेशन थी। स्वीडिश थे वो, और उनकी मुझे पर्सनैलिटी पसंद थी। तो जब मैंने देखा कि वो रॉजर फेडरर के कोच बन गए और मैंने रॉजर फेडरर के ऊपर किताब वगैरह पढ़ी हुई है, तो मुझे लगा देख के कि बड़ी पर्सनैलिटी मैच करती है। नो वंडर रॉजर फेडरर चोज हिम एज अ कोच, बिकॉज उनका तर्ज जिंदगी गुजारने का बड़ा सिमिलर है। और तो मैंने भी यहाँ पे एक बात कह दी है थोड़ी छोटी सी, कभी कभी अच्छा होता है कि कोच और क्लाइंट की कुछ चीजें मैच करती हैं, कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स मैच करते हो, बहुत फर्क पड़ जाता है उससे ताल्लुक और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। तो मैं अगर आपके उसका एग्जांपल दूं, आप देखिए कि जब इन हजरात को, फेडरर को, सेरेना विलियम्स को जब चोट लगती है तो दे गो टू अ फिजियो एंड दे गो टू अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर या फिजियो उनका इलाज करता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, वापस आके मैच खेलते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कोच क्यों रखा हुआ है? जिस तरह आपने कहा, उन्होंने कोच इसलिए रखा हुआ है कि बहुत औकात में ऐसा होता है कि इंसान ऐसे फेजेस से गुजर रहा होता है जहां पर डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट, डिस्पाइट बीइंग रियली गुड एट व्हाट यू डू, you start battling with something that is called your own nafs, which is your inside, your conscience. Your conscience sometimes tends to not side by you with the same vigor and force that it should. और इसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लेते हैं, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ कह लेते हैं। वो फेजेस हम पे आते हैं। वी ऑल वर्क इन अ वेरी साइन कर्व काइंड ऑफ मेथड, ऊपर नीचे होती है, रेस्ट भी आती है, ट्रप जाती है। उस टाइम पे जो आपको नीचे से, जो when the ships are down, whether it's mentally or something actually has happened कि you're not doing well, but you want to get up, coach can help catalyze that process, तेज कर सकता है। मैंने जैसा शुरू में कहा था, वो उस इंटेंशन पे काम करता है इम्प्रूव करने की। मेरी बात गौर कीजिएगा, he or she would work on the intention for you to improve, कि आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए कि आप बस इतना आप चाहते हैं कि आप यू गो रीच द मून इफ यू हैव टू। आपको उस लेवल की मोटिवेशन मिलती है बात करके अपने आप से, अपने कोच से। आप याद रखें कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको आसान लफ्जों में डालूं, थेरेपी, आप तो उससे गुजर चुके हो, काउंसलिंग, लेट मी केयरफुली पुट इट, therapy and counseling, because I have a lot of therapist friends and counselor friends, बुरा ना मान जाए मेरी बात पे, लेकिन वो अच्छा ही बताने लगा हमें कि वो क्या कहते हैं। What they do is, when you stop, or when you are not being able to move, they help you. When Serena Williams has a bad leg, the physio fixes it and she moves. But जो कोच होगा, मैंने आपको पहले जिस तरह कहा, he would make your journey, or she would make your journey from good to great better. वो आपकी उस जर्नी को फैसिलिटेट, you're already moving, you haven't stopped, you're very much moving. So कोच उस मूवमेंट को, उस पुश को इतना अच्छा कर देता है कि आपकी जो जर्नी है वो ज्यादा कैटलाइज हो जाती है। What you're saying is really powerful. मुझे अब याद आ रहा है कि one of the things that I used to struggle with my therapist is like कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, but I can't do them, and if only I could do them, then my depression would be over. And she said something very interesting, and she's like, it's the reverse. When you get better, then you will be able to accomplish those things. You will not accomplish those things and get better. So that's interesting. The therapy part is to get better. It's to get mentally healthy.
And then once you're better, then you want your coaching to make you great, to take you from good to great. I think that's a very powerful way of putting it. तो अब मुझे बताएं, you talked a little bit about the discovery session, which is like the first session, but what are the different tools and techniques do you have to run the process? मतलब ठीक है, अब discovery session से the person realizes कि ठीक है Nabil, I want to work with you, and my goal of life coaching is to discover what my purpose in life should be. What are the techniques, what are the tools that you're going to use to help me discover my purpose, and how quickly can you help me find it? Because we are wasting time until we keep talking and talking and talking. So I'm sure you feel that pressure from your clients. So how do you deal with it? How do you help them discover their purpose? Well, it's a very challenging thing to help someone with discovering their core purpose, and especially if the purpose is purpose of life, which is basically why we were born. And I don't think any coach is qualified to do that, but you are qualified to do that for yourself. You are very qualified to do that for yourself. To find the best, most effective version of yourself, you are the most qualified person. The coach just has to ensure that you know that you have all those traits that are needed, for you to move forward. If you're aware of them, आपकी self awareness बढ़ाना एक coach का काम है. So if you ask me, discovery हो गई, discovery के बाद क्या होगा? तब मैं आपको बता रहा था कि discovery में सबसे बड़ी चीज establish होती है ना, वो आपके goal setting होती है कि मेरा goal ultimately है क्या. उसका अगला स्टेप होता है रियलिटी ऑन ग्राउंड. मेरे इस वक्त कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज है, मुझे क्या आता है, और मेरे पास क्या क्या वसाइल हैं, कौन से वसाइल मुझे एक्वायर करने, कौन से स्किल्स मुझे एक्वायर करने, कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो मैं नर्चर किए जा रहा हूँ, फायदा कोई नहीं उसका, इट्स नॉट गोना ऐड वैल्यू, सो आई रादर नॉट वेस्ट माय डे ऑन इट. दैट्स हाउ यू सेव टाइम. सो आप एक बड़ा क्वांटिफाइड वे में अपनी स्किल्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपना स्वॉट करते हैं, कह लें आप, अपना एक स्वॉट एनालिसिस पूरा करते हैं आप, कि जो आपका क्लैरिटी आपको देता है, आपकी रियलिटी. उसके बाद सबसे मुश्किल स्टेप होता है मेरा ख्याल है, जो कि आपके पास हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन. यहाँ पे क्वांटिफाइबल स्टेप्स और एक्शन प्लान बनता है, जो कि बताता है कि हाँ अब ये करो, आओ इसको 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद रिव्यू करते हैं, हम कर पाए कि नहीं कर पाए. मैंने इस तरह कहा था, इट्स वेरी एक्शनेबल, बड़ा कोर है. जिस तरह फॉर एग्जांपल some clients I have, they would agree with me after talking to me that I think I'll need to fire 2 more people, very core people, they're very close to me. मैं फायर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ? We talk about it for an hour and a half. We logically define for ourselves, जब ये होगा तो Armageddon तो नहीं आ जाएगी. What is the way? What is the workaround? क्या है? क्या हम इन्हें बचा सकते हैं? एक केस में पिछले दिनों में हालात ऐसे हैं कोविड की वजह से, तो लोग करना पड़ा, लोगों को रिमूव करना पड़ा. But what's the actionable item? Okay, next time when we meet in 12 days or 14 days, you tell me if you've taken that decision. And I see them, they have taken the decision, and they've even hired someone new, maybe not as expensive to their budgets as the other 2, but they moved on. And then we talk about, okay, now where do we stand? हमने रियल डिसीजन लिया ना, हमने एक बिजनेस डिसीजन लिया ये कि 2 लोगों को हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो मेन जो पड़ रहा है स्ट्रेस हमें हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो कम हो जाए. अब ये डिसीजन थी बड़ी, ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने बातें की और खुद वापस हो गया. We agreed on a way forward, and then इसको हम कहते हैं accountability. The coach helps you be accountable to yourself. जनाब आपने इस तारीख को ये कहा था मुझे, ये लिखा हुआ है मैंने, क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा कोई बात नहीं हुआ, लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स रिफ्लेक्ट, हम क्यों नहीं कर सके? फिर बंदा जब बात करना शुरू करता है, कहता है यार ये कंस्ट्रेंट आ गया, ये बीच में माइंड में एक स्टॉपेज आ गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हो गया वो, एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन वी गिव वेट टू दैट टू. यार अच्छा लगना ना लगना यहाँ मैटर करता था, अगर तो करता था क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंसान, देन दिस होल गोल इज रॉन्ग. Then we need to redo the goal. We need to find another way forward.
to reach to the same goal then, या फिर जो भी हमने agree किया. And by the way, I'm using goal in larger context and the context of weeks as well. Goals बनते हैं हर हफ्ते के, वरना फिर वो accountability रहती नहीं है. मैं जो मॉडल यूज करता हूँ, दुनिया बड़े मॉडल यूज करती है और मैंने वो सब मॉडल्स को यूज करके देखा है. ग्रो मॉडल है, फ्यूल मॉडल है, ये इन्वेस्ट मॉडल है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने क्रिएट किए हैं. तो द मॉडल आई यूज इज कॉल्ड द इम्पैक्ट मॉडल. क्योंकि इम्पैक्ट एक कोर वर्ड है जिसको मैंने फॉलो करते हुए अपने पुराने काम भी किए, जो चाहे वो टीवी पे किया या उससे पहले जो गवर्नमेंट में काम किया 5 साल. The core word was are we impacting? Are we impacting? So I asked myself कि मेरे लिए क्या मॉडल अच्छा होगा. So when I say impact and you ask me discovery के बाद क्या होता है, the I stands for identifying the problems. I identifying the problems and identifying the purpose. बड़ा main step हमारे लिए होता है, हम उसको follow कर रहे होते हैं. इसके दरमियान में I have various tools जो I use for identification of the problem and the purpose. Then we move to measuring the performance of a person. हम measure करेंगे कि हर week, हर 10 दिन के बाद क्या हम जो achieve करना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं या move नहीं कर रहे हैं. तो measurement आया. P stands for planning. कि we have to continuously keep planning after every session कि हमारा अगला step forward क्या है. Plan, execute, plan, execute. A stands for asking difficult questions. Which is something that applies on me as a coach and you or as a client too. You have to ask yourself difficult questions also. It's my success if I can put you in that habit of asking difficult questions. P stands for challenging yourself. Challenge yourself. Okay, I'm going to do this. I'm going to make it work. किसी बंदे को problem है कि वो उसका weight loss का मसला आ रहा है, वो नहीं खाना छोड़ सकता. We have to agree on certain goals here in the mind. Yes, the nutritionist can tell you what to eat, what not to eat, but he or she can't stop you at 12 midnight to open the fridge and eat an entire cake. That only your mind can do. So the coach will help you strengthen the decisions that being taken in your mind, because he's going to make you or she's going to make you look at yourself every second week or maybe every week, despite. And T stands for tracking. Tracking means accountability. You have to understand that बड़े लोग समझते हैं बिलाल के ये स्टिग्मा है और कि हम कोचिंग ले रहे हैं तो हम किसी को बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इस पे बल्कि बात हमें करनी चाहिए. मैं आपको बताऊं कि अकाउंटेबिलिटी जहां मैंने जिक्र किया आपकी हम कर रहे हैं, वहां पे एक दो और चीजों का ख्याल रख रहे हैं. एक कोच, यकीन करें मेरा, एक डॉक्टर और लॉयर की तरह होता है. उसको आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन उसका ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो ऐलान करे उसका और जाके इंटरनेट पे लिखे उसके बारे में. आपकी जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप ही वो बड़ी हमारे लिए प्राइम है, लेकिन वो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आपका नाम छुपाकर मैं कोई आपकी इज्जत कम ज्यादा कर रहा हूँ. आपको प्राउडली बताना चाहिए कि आप कोच ले रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं. क्यों है लोगों में ये डर क्यों है? इट फील्स लाइक कि जो अगर औरतें प्लास्टिक सर्जरी करवा लें या बाल वो मर्द जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, मतलब इस किस्म का स्टिग्मा क्यों है लाइफ कोचिंग के साथ, when there is no stigma to be had. और मैं इसीलिए काफी इसको, in fact that is the fundamental purpose of this session, which is to have both of us talk about it very openly and for me to say yes, I get life coaching, matlab there's nothing wrong with it. But kyun hai, matlab why does it need to be like, as if a crime is being committed? Again मेरा ख्याल है awareness की कमी है. Number one, awareness की कमी है. और एक क्योंकि मैं आपको इस तरह, जब हमारी पहले बात हुई थी पहली बार, मैंने आपसे कहा था कि मेरे अंदर चीज है, मैं इस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इससे पहले कि मेरा दोस्त बुरा मान जाए. आई एम शेमलेसली पेट्रियोटिक, शेमलेसली. मैं इस मुल्क को की खातिर जो हो सकेगा करूंगा जिंदगी में, और कोशिश भी करता रहूं, छोटी मोटी और आगे बड़ी कोशिश भी करनी है इंशाल्लाह, उसी की तैयारी हो रही है. तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने मुल्क को बड़े गौर से पढ़ना पड़ा है. और जब आप पढ़ाते हो ना, तो यू डील विद लॉट्स ऑफ यंग पीपल, you deal with the people who will build your future. And I've been teaching for 8 years. So those kids who were 22-year-olds then, and now they might be 30, 31 in their early to mid careers.
मैंने hundreds of students को पढ़ाया, hundreds of them, और मैंने अपने ये जो स्टार्टअप स्पेस में बहुत फाउंडर्स के साथ काम किया, मतलब 12-13-1400 फाउंडर्स के साथ मैंने काम किया. I've gotten to know certain things about the people in our country. हम बहुत ज्यादा assume करते हैं, बहुत ज्यादा assume करते हैं, हम बहुत ज्यादा generalize कर देते हैं, हम बहुत discrete maths को बड़ा पता नहीं अच्छी तरह यूज करते हैं. A implies B, B implies C, तो फिर A implies C. अच्छा, अगर ये थेरेपी टाइप चीज लग रही है तो ये कोचिंग भी थेरेपी ही होगी, और क्योंकि थेरेपी बताऊंगा तो लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, खुदा ना खास्ता, तो कोचिंग में वो लोग मुझे उसी टर्म्स में डाल देंगे. assumption, हम बिल्कुल थॉरो नहीं है, हम बड़े सरफेस लेवल हैं. आप लोगों से कहें काम करके आओ, वो सरफेस लेवल जुगाड़ लगा के आ जाते हैं और हम उसे एडमायर करते हैं. इसका नुकसान होता है सबसे ज्यादा आपको खुद होता है और किसी को नहीं होता. तो आपके एम्प्लॉयर को नुकसान नहीं होना, उसको आप छोड़ दोगे, यू जॉइन सम अदर कंपनी. अपना नुकसान आप कर लेते हैं. ये इतनी नहीं, मैं बस इसमें एक क्विक कमेंट करना चाह रहा था कि दिस इज सो ट्रू. इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि हम एक इतनी जुगाड़ू कौम है कि हम अपनी जिंदगी में भी जुगाड़ मारते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के ऊपर भी मेहनत नहीं करनी पड़े या अपने गोल्स के ऊपर भी मेहनत नहीं करने पड़े, और हम इसी को सक्सेस समझते हैं कि हमें काम नहीं करना पड़ा, और एंड वी लूज सो मच एज अ प्रोसेस. मतलब इट्स सो ट्रू जो आप बात कह रहे हैं. मतलब जितना एम्फसाइज कर लूं कम है ये. सो आपने जो कहा ना स्टिग्मा क्यों बनता है, तो जो बेचारा अपनी जिंदगी में गुड टू ग्रेट की क्वेस्ट में है, जो अपनी बेस्ट वर्जन ढूंढ रहा है, वो ऑलरेडी बहुत अपने आप को सवाल कर रहा है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर. मैं समझ सकता हूं, आई हैव टू एम्पैथाइज विद द पर्सन हु इज माय क्लाइंट. ऑलरेडी अपने आप से डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग कर रहा है, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लर्निंग जोन में जा रहा है, बार बार जा रहा है, उसको बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ रहा है. अब वो इसका ऐलान भी कर दे तो जिस तरह की कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो उसको जीने नहीं देंगे. हाँ देखा, तुम नाकाम इसलिए हो रहे हो, तुम्हें ये मसला. It's so easy for people to point at a painting and say देखो ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक. मैं हमेशा कहता हूँ इन जो भाई साहब या बहन इस तरह बात करें, उनको पेंट ब्रश पकड़ाएं, वो कह जरा ठीक कर दें आप इसको, जाके सारे भाग जाएंगे. You have to understand this. जो बंदा इस महाज पे है कि वो अपने आप का बेस्ट वर्जन ढूंढ ले, उसको आप और प्रेशर डालेंगे. That's very shameful. बल्कि उससे तो आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि वो आपसे बहुत आगे जा रहा है या जा रही है, वो दौड़ रहा है इस वक्त. एंड जिसने अपना पर्पस ढूंढ लिया, उसने जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया, उसने जिसलिए अल्लाह ने बनाया था हमें, वो ढूंढ लिया यार. तो अगर उस जर्नी में कोई कोच या कोई थेरेपिस्ट कोई रोल प्ले करता है, उसको स्टिग्मा बनाना तो बहुत ही बेवकूफी है. बल्कि कोचिंग तो अब एक बड़ा सो कॉल्ड, लेट मी बी अ लिटिल सार्कास्टिक, स्टाइलिश चीज बन गई है दुनिया में. अब तो दुनिया एक्टर्स बताना पसंद करते हैं हॉलीवुड के, मेरा ये कोच है. स्पोर्ट्समैन बताते हैं मेरा ये कोच है. अपना बिल कैम्बल का नाम सुना है आपने, स्टीव जॉब्स को कोच किया, बिल गेट्स को कोच किया. सोचे दोनों कंपेटिटर्स हैं, दोनों को कोच किया, मतलब कोच किया. कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये. टिम रॉबिन्स है, हम उनकी बातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस बोलते हैं, वो मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं. पर ये कोचेस को, इट्स नॉट अबाउट द कोचेस, इट्स अबाउट यू. तो मैं ये जी बोलिए. इसमें मैं एक और एग्जांपल इसमें ये कि अब एक और जो फैशनेबल चीज आ गई है कि जिम का कोच लेना इज वेरी नॉर्मल नाउ इट्स एक्सेप्टेबल कि आपका फिटनेस कोच हो. एंड फ्रैंकली अ लाइफ कोच इज सिमिलर कि वो आपके लिए एक्सरसाइज नहीं करेगा. मुझे याद है एक जोक था, एक मेमन हूँ, तो हम लोग वो सेठ लोग होते हैं, ऑल्दो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट इनहेरिट अ सेठ बिजनेस, बट तो वो डॉक्टर ने एक बार द मेमन सेठ वाज हार्ट पेशेंट, तो डॉक्टर ने बोला कि यू नीड टू जॉग एवरी डे एंड यू नीड टू रन. तो अगली बार वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई डिड यू रन, तो उसने बोला हाँ मैंने बंदा हायर कर लिया, वो हर दिन भागता है मेरा. तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे फिटनेस कोच हैं उनका भी हमारा दे डोंट वर्क आउट फॉर अस बट दे टीच अस हाउ टू वर्क आउट, और यही लाइफ कोच की स्पेशलिटी है. And until they ask us, uncomfortable questions, just like, if you go to the gym and you're not sweating, you're not really working out, you're just having fun and socializing.
तो इसी तरह जब तक लाइफ कोच आपसे अनकंफर्टेबल चीजें नहीं पूछता, until he makes you sweat, you're not succeeding, and then you need to create the space for more people to realize the value that it can bring to your life. इसमें एक और चीज भी मैं यही कहूंगा, जो आप वो बात कर रहे थे कि प्रेशर सारा उस बंदे के ऊपर नहीं होना चाहिए टू डीस्टिग्मेटाइज जो एक्चुअली लाइफ कोचिंग के थ्रू चल रहा है. इसमें फॉर सोसाइटी इन जनरल वी नीड टू रियलाइज के स्पेशली द ब्राइट माइंड्स इन पाकिस्तान, स्पेशली जो हमारी ऑडियंसेस हैं, मतलब हम सब लोग एक भीड़ में, एक रेस में लगे हुए हैं जिंदगी की, जो शुरू होती है राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन के पहले भी होती है, बट बेसिकली आपको एक पाथ दिखाया जाता है कि भाई आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करनी है ताकि आपके माँ बाप जो हैं वो खुश हो सकें और अपने खानदान में शो ऑफ कर सकें. फिर आपकी गर्लफ्रेंड होती हैं, वो कहती हैं कि यार तुम्हें रिश्ता भेजना है जल्दी से घर, लेकिन तुम रिश्ता तब तक नहीं भेज सकते जब तक तुम्हारी कोई नौकरी नहीं हो और कोई अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं हो, और मुझे अभी से अजीब लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं और मैं मना नहीं कर पाऊंगी until you get a job. और मतलब जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि ठीक है आप ग्रेजुएट करके जो है आप बहू बन जाएं, इवन दो लम्स या आईबी के अंदर वही बैठ के पढ़ा रही होती थी लड़कों को. तो the point being कि everybody there is these external expectations जो हमारे ऊपर डाली हुई हैं, and we just follow them like rats in a race. और जो थिंकिंग है हमारी कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए उसके बारे में हम सोचते नहीं है. लेकिन आपने स्पेसिफिकली इस सवाल के ऊपर इतना सोचा है कि आपने एक किताब भी लिख डाली है इसी टॉपिक के ऊपर और इसी सब्जेक्ट के ऊपर. सो टेल अस अ लिटिल बिट मोर कि आप इतनी गहराइयों में कैसे लग गए ऑन लाइफ, and tell us a little bit and give us a little bit of a flavor of what your book uncovers and when people can grab a copy of your book. Thank you Bilal for asking that question. I didn't know ये आप पूछेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया, तो अच्छा मुझे मौका मिल गया बताने का किताब के बारे में. मैं किताब के बारे में बता देता हूँ. मैं थोड़ी सी एक बात आपकी बात कंटिन्यू कर लूँ जो आपने बोला है पहले कि देखिए इसमें ना कुछ एक चीजें हैं, 2-3 जो समझने वाली हैं बहुत ज्यादा. स्क्रीन थोड़ी सी मुझे, just give me a second, I lost your screen. Okay, I'm still here. Yeah, I'm here now. Okay, so what I want to say to people, because हमने स्टिग्मा की बात, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें the kind of पॉइंट जिस पे इस वक्त हम खड़े हैं, जिस जंक्शन इन टाइम पे पाकिस्तान खड़ा है ना एज अ कंट्री, ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल वोंट रियली मूव अस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन. हम एक सोशल रट के अंदर अब फंस चुके हैं जिसके अंदर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मसाया फ्रॉम सम पार्ट ऑफ सम प्लैनेट टू कम इन एंड फिक्स अस. सो इट्स नॉट गोना हैपन लाइक कोई सुपरमैन आएगा और वो आके सारा कुछ ठीक करेगा, या फिर कोई मार्वल का कोई और कैरेक्टर आ जाएगा. आपका सारा मार्वल, आपका सारा सुपरमैन आपके अंदर है. And that is what I see you insisting also, and I'd also like to second that. That is the best possible version of ourselves. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है. जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो पूरी करूं और मैं उसको ठीक तरह पूरा करूं. और जब मैं उसको पूरा कर लूं तो मैं ख्वाब देखूं कि अब मेरी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है, फिर मैं उसको पूरा करूं. जो इंसान बड़े ख्वाब देखता है उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, उसका मजाक भी उड़ता है. तो जब आप बड़े ख्वाब देख रहे हो और आप इस बीमारी में लग गए बड़े ख्वाब देखने की और उनको अचीव करने की, और आपका मजाक उड़े, तो आपने इनका इस्तेमाल करना है. वो जो कानों में लगाते हैं ना आजकल, वो जो हेडफोन वो लगाएं और उस विर्द को सुने जो आपको इम्पैक्ट करता है. वो विर्द जो मर्जी है, आपने हिलना नहीं है. देखिए, never downscale your dreams because people said you can't do it. Because लोगों ने तो हर वो चीज को क्वेश्चन करना है जो उन्होंने पहले होती नहीं देखी. So if you want to be the first one, what is extraordinary? Extraordinary is someone who changed things, someone who's done something that wasn't done before. So if we all go in that quest to be extraordinary, people will laugh at us, but they laugh at you, then they join you. Because after all,
anything that helps them get more likes and RTs on the internet, my friend, if your work is doing that, they would go ahead and start following you. Don't worry about them. Don't worry about this. So, जब ये don't worry का element है ना, जब worry करे वो, that is when you must sign up for a coach. That's my pitch for coaching. That is when your coach will tell you, okay, stop looking elsewhere, just focus on yourself, keep at it, make it happen. You are ready to rule the world or do whatever you want to. Just dream it and you'll do it. So, ये coach इस process को enable करता है और यही coaching है. आपने मुझसे किताब का पूछा. जी. किताब मेरी जी, आपने तो पता नहीं 17 साल की उम्र में किताब लिख ली थी. मुझे तो आपने ऐसे कॉम्प्लेक्स में डाला है कि इसके बाद मैं किताब के बारे में बात ही नहीं करना चाहता. लेकिन मैंने तो कि आप एक लाइफ कोच लें तो ये फेयर भी आपका चले जाएगा. बट ठीक हो गया जी. So if I were to talk about the book, my book is the name of the book is You. So again, it is about you. What led me to writing this book is my continuous quest to find the best version of my own self. I've done things in life which some people consider it casually, can easily say that they're very small achievements. Some people think जो किया है समझ नहीं आया, नबील को क्या हो गया, क्या कर रहा है, किया लोगों ने. क्योंकि देखें, बात ये है, मैं जब जिंदगी में, और ये हम सब पे अप्लाई होता है, मैं जब जिंदगी में गिरा हूं और मुश्किल आई है, मैंने देखा कि थोड़ी देर के लिए तो लोगों ने साथ दिया, थोड़े से लोगों ने थोड़ी देर के लिए साथ दिया, उसके बाद उनके अपने मामलात आ जाते हैं, उन्होंने अपने मामले चलाने, फिर आप अकेले रह जाते हो. और अगर आपके पास लोगों की दी हुई बैसाखियां हैं, तो आप तो you'll have a stunted growth all your life. What you need to do is to be thick-skinned enough and have faith in your own self. ये जो self है ना, उस self को ढूंढना एक बहुत बड़ी जर्नी है. इसलिए एक पॉइंट आया जिसके बाद मैं इंतहाई इज्जत करने वाला बंदा हूं बिलाल. मैं अपने नाकदीन होते हैं, कौन होते हैं, जो नेसेयर्स होते हैं, मैं उनकी तो बहुत ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं पता नहीं क्यों अल्लाह इतनी कामयाबी देते हैं थोड़ी देर के बाद कि बस अल्लाह का बड़ा करम खुद ही हो जाता है. लेकिन वो ना होते तो शायद वो मोटिवेशन ना होती अपना काम करने की. तो मैं बिलीव करता हूँ यार कि इंसान को अपनी ट्रू सेल्फ, अपने बेस्ट वर्जन को ढूंढते रहना चाहिए. ठोकर पड़ेगी, आप हारेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन जब आप गिर के उठते हैं ना, फिर आप एक और आपके अंदर वो a little bit of extra adds to that ordinary. So you become a little more extraordinary, and then a little more extraordinary. So the more you fall and the more you get up, you keep getting extraordinary. So this journey of becoming extraordinary is what I have written in the book. So it's a journey from 0 to 1. 0 means when you're born, and 1 means your identity. So I take you from this chapter from 0, which is a timeless contract. I start with that. I make you sign a contract, by the way, in the book. So you sign a contract with me. You know, we share. मेरी किताब में भी जो मैंने 17 साल पे लिखा था, I make you sign a contract. It's interesting. देखो ना, तो means this shows कि आपने book बड़ी दिल से लिखी थी, क्योंकि ये contract आप दिल से लोगों से sign करवा सकते हैं. उसके बाद आपका chapter 0 आता है, which means you don't exist. I talk about your existence and why. Then we move to point 1, which is the back to the basics. कि हमारी जिंदगी के basics क्या थे जो हम भूल गए. याद है वो जुबली और वॉल्स, वो हम भूल गए. बिल्कुल वो simplicity भूल गए. Then you move to point 2, which is more than looking in the mirror, which is self-reflection. Then we talk about exploring ourselves, which is point 3. Then we talk about complexes that we develop looking at people, point 4. Then we talk about drawing the arrow, focus कैसे किया जाता है. Point 6, distractions, missing the point. Point 7 is effectiveness. Effectiveness कैसे आ सकती है, इसमें हम esteem की बात भी करते हैं, ego की बात भी करते हैं, and all those things. Point 8 is moving forward, which is walking the talk. Point 9 is the last few miles, which is about not giving up, catalyzing your journey, various tools I mentioned in that. And 1 is the missing link. And the missing link is faith, iman.
ईमान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जो क्रिश्चियन है उसके अंदर भी है, जो हिंदू है उसके अंदर भी है। ईमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी सारी एग्जिस्टेंस को पैकेज करता है, एंड दैट्स वेयर द बुक एंड्स। सो दिस बुक इज अबाउट यू एंड दैट्स द नेम ऑफ द बुक। दिस बुक इज अबाउट यू। सो ये किताब है सर, और ये लिखी इसलिए है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी मारे खाने के बाद और अभी आगे और भी खानी है, मुझे चाहिए कि मैं वो सब कुछ लिख के अपने चाहने वालों को, अपने ना चाहने वालों को, सबके लिए कुछ छोड़ जाऊं, ताकि लोग उसे देख लें, क्या पता किसी पॉइंट पे जिंदगी में वो काम आ जाए। This is so interesting, and I don't know if it's true for you, but when I wrote my book, the first audience for that was myself, because I was like, जितनी भी मैंने lessons अपनी जिंदगी के लिए सीखे हैं, वो मुझे भूलने नहीं हैं. So I want to put it in one place, so that if I ever forget or if I ever stray, I know where to come back to it from. So I would love to know if that's true for you, मतलब if you're the first audience. और दूसरी चीज बताइए, if somebody wants a copy of your book, how do they get it? So the essence behind the book is that yes, it's written because मैंने खुद लिखी है, तो मैंने सिर्फ एक चीज इंश्योर की है कि उसमें मेरा कोई जिक्र ना हो। मैंने कहीं पर उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ नहीं की। जब की है कुछ जगहों पे, तो वो उन्हीं जगहों पे की है जहां पर पढ़ने वाले को लगेगा कितना बेवकूफ आदमी था ये, कितना बड़ा खोता था ये, मैं होता तो मैं ये ना करता। सो आई डोंट ग्लोरीफाई माई सेल्फ, आई मेक माई सेल्फ लुक रियली स्टूपिड, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो ये किताब पढ़े उसको लगे कि मुझसे तो ज्यादा समझदार है वो। तो और सेल्फ एस्टीम पे की ग्रोथ भी ऐसी होती है कि इंसान को अपने पे यकीन होना चाहिए, जैसे भी आप हैं। तो मेरा यस फर्स्ट ऑडियंस भी मैं ही हूँ उसका, लेकिन मैं समझता हूँ जो पढ़ेगा उसको, शायद मुझे लगता है बिलाल, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, शायद इस किताब का मवाद बहुत से नॉर्म्स को चैलेंज करेगा। ये इतनी आसान किताब नहीं है, ये लिखी बड़ी सादा जबान में होगी, लेकिन ये कुछ ऐसी बातों पे आपको इतना सवाल करती है कि शायद चौथे चैप्टर तक जाके लोग किताब बंद भी कर सकते हैं, तो यार मैं तो पढ़नी कोई नहीं है, तो फायदा कोई नहीं पढ़ना। तो ये हो सकता है, लेकिन जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिल से साइन किया है कि आई एम गोना रीड इट टिल द एंड, मैं आपको उस फेथ तक पहुंचा जरूर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये टफ किताब है, ये इसलिए लिखी गई है। अगर आपको किताब चाहिए, देखें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर तो हम मेंशन करना शुरू होने लगे हैं, हमारी कैंपेन शुरू हो रही है। 14 अगस्त को जी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे को इंशाल्लाह ये किताब लॉन्च हो रही है। पूरे पाकिस्तान में करीबन 400 स्टोर्स पे जाएगी। उसके बाद इसको इंशाल्लाह बाहर की भी लॉन्च करना है, लेकिन उसके लिए कुछ महीने अभी चाहिए। लेकिन पहला एडिशन इसका हम पाकिस्तान में करेंगे। आप दोस्तों को इंशाल्लाह हम बाहर भिजवाएंगे जब आपने मांगेंगे तो। इसका वेबसाइट है thisbookisaboutYou.org। सो इफ यू सर्च माय नेम इन अ फ्यू डेज, वैसे ही वो सोशल मीडिया पे आ ही जाएगा। तो बड़े मोहब्बत से किताब लिखी गई है, और ये किताब इस नीयत से लिखी गई है कि ये एक आपको ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दे जिंदगी का। अगर आपको अच्छा लगे जरूर याद रखें, उस पर अमल करें, ना अच्छा लगे तो उठा के फेंक दीजिएगा। But the book is available soon, very soon, inshallah it will be available. That's awesome, and we're really looking forward to it. मेरे दो और सवाल हैं. I know we're over time, but if you have 5 minutes, can we go a little over time? I'm really enjoying this conversation. Please go ahead. एक तो मुझे आपसे ये पूछना था, और एक ये क्वेश्चन भी आया है इसके बारे में, is I wanted to understand कि if somebody is taking life coaching with you, for example, हफ्ते में कितने सेशंस होते हैं या महीने में कितने सेशंस होते हैं, and how do you structure the payment, but how much does it cost to be able to get life coaching? It's a very tricky question, Bilal, because it varies. Different industries में different rates हैं. अमेरिका में तो कोचेस आपको पता है कितने कितने महंगे कोचेस भी हैं, बहुत महंगे कोचेस। $250 for everybody to know. I want to be transparent. $250 per hour के इधर कोचेस होते हैं। पर आवर $250, तो यू कैन इमेजिन कि क्या बनता है वो। तो अगर आप उस तरह की प्राइसिंग करें तो हमारे मुल्क में तो ये does not do the math with our economy, तो वो तो गलत था। ऐसा मिडिल ईस्ट में वेरी करते हैं रेट्स, कम से कम भी $75 से $50 पे शुरू होता है, $150 तक जाता है। मैंने I'm sure I know some friends who are coaching and they've mentioned that they're charging quite a bit. I do not intend to charge a lot. उसकी 2-3 वजूहात ये हैं कि मेरा goal is bigger than my own self, as always.
It's about के there are other things that can pay my bills. लेकिन मैं ये bills के लिए नहीं कर रहा, मैं एक industry बनाना चाहता हूँ. तो अगर आप मुझसे figure मांग रहे हैं तो अभी तक तो I've gone as high as for some senior executives who I see. इसके ऊपर 2-3 angles से बताता हूँ मैं price कैसे करता हूँ. So वो I've gone as high as 50,000 per session, which Pakistani rupees, which is not again not a lot. And I've gone as low for startup founders to 15-20,000 rupees per session also. I've even in some occasions given some free sessions to people because I felt they needed it. So, but that's not pricing. मैं कैसे इसको price करता हूँ? I talk to you. So when I talk to you, I figure out कि आपकी कितनी, देखिए, it's not a cost. It's an investment in you. मैं ये बार बार क्या, आपकी सकत कितनी है, आपकी कितनी ताकत है, व्हाट्स योर पावर टू पे एंड इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ. मैं वो देखता हूँ, एस्टिमेट करता हूँ. पर वेरी इस वक्त रेट्स यहाँ से यहाँ कर रहे हैं. आई एम नॉट ऑन द हायर साइड. आई डू नॉट इंटेंड टू बी ऑन द हायर साइड राइट नाउ. व्हाई? इस इंडस्ट्री को मैंने मेन स्ट्रीम करना है. कोचिंग इज फॉर एवरीवन बिलाल. इट्स नॉट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. इट्स फॉर एवरीवन. So I when I quoted to somebody, he said, "That's it. That's how much you charge." So उन्होंने जब मुझे वो कहा, और मेरे ख्याल में मैंने ठीक ही चार्ज किया था, बता दिया मैंने ऊपर वाला अमाउंट, वो शायद उससे ज्यादा देना चाह रहे थे. तो आप ये देखें कि वो देना चाह रहे थे. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे थे, यार नबील भाई इतना मत चार्ज करें, मैं नहीं दे सकूंगा. तो देन आई स्पीक टू देम एंड आई नेगोशिएट. बिकॉज होता क्या है, इंटेंशन ये है, एज अ कोच बिलाल, आई हैव टू सी इन द डिस्कवरी सेशन, कैन आई हेल्प यू. मैं ये भी रेट कर रहा होता हूँ. देखें, हमें अपना हर काम बड़ा सिंसियरली करना है. उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो सिंसियरली उस्ताद बने. इस तरह कोच हैं तो आप सिंसियरली देखें उस डिस्कवरी सेशन में, am I the right coach for this person? If I'm not, just say no. Thank you करके किसी और को रेफर कर दें. अगर आपकी गोल है अपने पैसे कमाने और क्लाइंट क्रिएट करना है, तो ज्यादा देर नहीं चलता. ये 2-4 साल मजाक चलता है ये वाला. उसके की जिंदगी में हर डिप आ जाता है. But if you really want to change lives, then you have to really match make well, and that's the coach's job. कि मैं match make करूं. So I match make it that way. और ये मेरी pricing के brackets हैं. अभी आगे कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन this is what it looks like right now. Thank you, Nabil, so much for being so honest and transparent. I mean, I think that is very powerful, and there are very few people who are that open. So I think, thank you for that. अब जो आखिरी question है वो ये है कि इस सारे सेशन का आई थिंक मजमुआ ये है कि आप एक लाइफ कोचिंग के जिहाद पे निकले हुए हैं और आप इसको आपकी बैटल लड़ रहे हैं. you're fighting the good fight, but you're not just doing it for the sake of life coaching or for the sake of commercialization. आप चाह रहे हैं कि Pakistanis are able to find the best version of yourself. It's not just about you, it's about creating a culture कि जहां people feel comfortable about it. तो अगर कोई ये सुन रहा है या अगर आपकी कोई एम्बिशन है कि लोग आपको इस जिहाद के अंदर ज्वाइन करें, तो हाउ कैन पीपल help and how can people join you on this journey to build a culture where it's acceptable to be coached and to be a coach? Bilal, 2015 में करीम आई पाकिस्तान, ठीक है, और मुझे याद है कि मैं काम कर रहा था आईटी बोर्ड में, और मुझे याद है कि रक्शे वालों ने हड़ताल कर दी और बस होने वालों ने हड़ताल कर दी और सारा मामला हुआ. एंड लगता था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा. पर जब होना शुरू हुआ और व्हेन वी गॉट थ्रू द फर्स्ट डिफिकल्ट फेज, वो ऐसा फैला कि कल्चर ऑफ मार्केट प्लेस फॉर कार्स एंड दिस राइड हेलिंग सर्विसेज आप देख रहे हैं. करीम के बाद उबर के बाद बाइकिया के बाद एयरलिफ्ट, वो स्वेल आ गया, पता नहीं क्या क्या आता रहेगा. क्योंकि इट वर्क्स, सो इट विल वर्क. ऑल द यूनिट इकोनॉमिक्स किसकी कितनी अच्छी है वो मेरे पे सवालिया निशान है बहुत ज्यादा, लेकिन चलें, अभी चल रहा है काम सारा वेंचर कैपिटल की मदद से, तो अच्छा चलता रहे. बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि हर चीज स्टार्ट मुश्किल से होती है. ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, राइट? एनी ग्रेट थिंग इट टेक्स टाइम टू हैपन. तो अगर मैं कोचिंग की बात करूं, इंटेंशन ऑफ कोचिंग टू स्प्रेड कोचिंग इज कि पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने कहा, हम जिस पैराए पे खड़े हो गए आके, हमें हमारे अंदर से लीडर्स चाहिए. So we all have to find leaders within us. Whether we are a mother, we have to be a leader. A mother has to be a leader.
to create those two sons and daughters, for that matter, जो के leaders बन सके future. If you're a father, you have to lead that way. And being a leader में सबसे important चीज होती है responsibility, living a life of responsibility. Coaching helps you become responsible as a coach also, because you are taking such a big responsibility of someone's goals. I think it's a great career to boost our self-esteems. So I would rather promote this as a career for so many young people जो कि lost होते हैं when they come out of university. उनको ये बताया जाता है कि कंप्यूटर साइंस की नौकरी कर लो, सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो. Why can't we at a large scale, at a massive scale, train younger students to become trainees and coaches? To start with, they become young coaches and then ultimately grow into, with their experiences, into becoming formal coaches. And not just coaches, there's consultancy, that's another space, there's trainers. हम कहीं पर भी trainers को formally तैयार नहीं करते, हम कहीं पर भी इन skills को देते ही नहीं है. तो हम सारे ये acquired skills लेते हैं आके. हर बंदा ultimately trainer बन जाता है. जो trainer बनता है वो कहता है मैं mentor भी हूँ, मैं consultant भी हूँ, ये भी हूँ, सारे सब कुछ है. तो सारे सब कुछ से बेहतर ये होगा कि हम इंडस्ट्री को तमीज और तरीके से बनाएं, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करें कि अगर आपने कोचिंग में बन जाना है एज अ करियर, तो हम स्कूलों से बात करें, कॉलेजेस से बात करें, यूनिवर्सिटी से बात करें, इसको हम पूरा एक करिकुलम के तहत उठाएं. तो आप देखें क्या होगा जिस कॉम में एम्पैथी आ जाए. और एक तो आपने करियर अपॉर्चुनिटी दे दी, तो चलो रोजी रोटी तो पूरी हो जाएगी. अब दाल रोटी आ रही है और उस चक्कर में उस करियर को सीखने में आपके अंदर एम्पैथी बिल्ड हो रही है, आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ रही है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं. कोविड ने क्या करवाया है? कोविड ने हर बंदे को एक दूसरे का ख्याल करना सिखा दिया है. पहले हम अपने बच्चों से, अपने घर वालों से कहते थे हाथ धो, अब हमने अपने जो घर में काम करते हैं मुलाजमीन, उनका भी उतना ख्याल रखा है. हम हमारे अंदर एम्पैथी बढ़ी है. बिल्कुल. अगर एक करियर पाथ आपको एम्पैथी सिखा दे तो पूरे मुआशरा बेहतर हो जाता है, जिम्मेदारी वाला मुआशरा बन जाता है. सो आई सी अ बिगर पिक्चर व्हिच मे नॉट मेक सेंस राइट नाउ. लॉट ऑफ पीपल विल लाफ एट इट. मेरे सारे कामों पे लोग शुरू में हंसते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, तारीफ कम ही करते हैं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आज ये, और आई एम इन्विजनिंग दिस, कि एक पाकिस्तान कोचिंग काउंसिल होनी चाहिए, उसमें आप भी मदद करें. और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे जो कोचिंग कर रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े सीनियर कोचेज हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा सकता है. आप इसका एक मेन स्ट्रीम स्टैंडर्डाइजेशन करें, आप इसको एज एन इंडस्ट्री सिखाएं. और हम we all know some important people in the government, we can take this up with them and get the support we need. It sounds idealistic, but in 5 to 10 years, Pakistan, I see in 10 years, inshallah, 2030, Pakistan can be a big industry for coaching, for external coaches to come in and work with us also. ये भी होगा आगे. So there's so much that can be done. Major training programs run किए जा सकते हैं privately, public sector की बेस पे भी. मैंने आफ्टर ऑल पूरे गवर्नमेंट स्केल के ऊपर काम किया हुआ है और फ्रीलांसिंग मैंने प्रमोट की हुई है थ्रू ई रोजगार. एट वन टाइम मैंने शुरू किया था पहला ई रोजगार प्रोग्राम कई साल पहले. तो मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि एक पीसी वन कैसे लिखा जाता है, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट फंड्स, नॉन डेवलपमेंट कहाँ से आते हैं, मुझे ये भी पता है कि करप्शन कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती. तो वो सारा कुछ जब समझ हो आपको, तो आप बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बना सकते हैं जिसमें मुल्क का फायदा हो सकता है. तो आपने पूछा, बड़ी तस्वीर ये है कि इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए. अल्टीमेटली हम सबके घरों में इसका इम्पैक्ट आएगा और सेल्फ एस्टीम्स बढ़ेंगी सब, इंशाल्लाह. This is outstanding, Nabil, and very, very inspiring. You know, there is something called the first follower theory. कि leaders को तो सब लोग crazy समझते हैं because they think of a new idea and chart a path जहाँ कोई पहले जा नहीं चुका होता या जाने का सोच भी नहीं सक रहा होता. तो you're clearly the leader of this movement. लेकिन what the first follower does is he legitimizes the movement. कि he says कि no, this person is not crazy, I'm going to follow him. So I will be your first follower. कि you know आप अच्छी जर्नी के ऊपर लगे हैं. I think it's very important to normalize life coaching in Pakistan, to be able to normalize conversations like these. तो I think आप कदम बढ़ाएं, हम लोग आपके पीछे हैं, and I'm going to personally support you through this journey. And inshallah we will be able to create a culture together where there is no stigma around life coaching. There's only celebration and discovery and being able to unleash our best selves. Because चाहे आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे आपका कोई भी
zindagi ki situation ho, all you want is to live your best possible life, and this is the pathway to be able to achieving that. बहुत शुक्रिया आपका बिलाल. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much, Nabil, and you guys should definitely pre-order his book. He is very prolific on social media, so if you want to reach him to have a life coaching discovery session, also feel free to catch him on his social handles, which I will also put under the comment section here. And then we'll keep chatting with Nabil and keep being his coach on his jihad for life coaching and keep pushing him forward. Thank you so much, Nabil. Thank you very much, Bilal. Allah Hafiz. Thank you. Take care.